Today the chapter we are going to discuss is The Happy Prince. It's from your book Moments, and it's chapter 5. The story title is The Happy Prince, and from the name as you can assume that this story is about a prince who is very happy or who is happy. But before that, or before the chapters we start discussing, first of all I would like to give you some information. The information is that, or the point to be noted in this chapter is that this title, Happy Prince, as it denotes or as it displays, it's not a living thing. It actually, this story is about a statue. Okay? This story is about a statue which is located at the center of a town. And as it is a story, imagination goes on in, and the prince is somehow able to talk with a bird. The bird is a swallow. Swallow is the name of a bird. Now it will come back, it will come later in the story. But first of all, as a preface, this prince statue is made up of a covering of gold. It has sapphires. Sapphires is a gemstone for eyes, and a ruby in his sword hilt. हिल्ट होता है जैसे तलवार में पकड़ा जाता है ना, तो यहाँ हैंडल के नीचे यहाँ पर एक रूबी थी. ठीक है, तो why did he want it? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, and we will find out the answer to this. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो वो अपने सोने और वो जो स्टोन्स उसकी आंखों और सोट के हिल्ट में लगा हुआ है, उससे वो क्यों दूर होना चाहता है? तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, और if we start the story, this prince is very emotional, okay? And he is very sensitized to see the condition of the people of his state, because he is at the center of the city and he can see everything going on in front of him. But as it is a statue, he is unable to help. He is located on a large column pillar. From there, because of the height, he can see everything, but can't help it. Because his, obviously it's a statue, so it can't move, but it can think, it can talk, it can see. Now, let's get to the story. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold for eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword. This is the description of the statue. This image is of the statue of Happy Prince. As you can see, it's on a pillar located in the center of the town, and this is a bird. This bird is a swallow. So, if we get to the meaning, शहर में, मतलब शहर में एक ऊंचाई वाले स्थान पर एक कॉलम का कॉलम मतलब पिलर कह सकते हैं, उस पिलर पर एक हैप्पी प्रिंस, खुशमिजाज प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था. स्टैचू मतलब मूर्ति. उसके ऊपर चारों तरफ से बहुत बर्फ, सोने का थिन लीव्स, ठीक है, सोने की एक परत चढ़ी हुई थी. आंखों के लिए उसके पास दो ब्राइट सफायर्स
जेमस्टोन है, मतलब कीमती पत्थर है, और रेड रूबी उसके तलवार के मुंह, ठीक है, तलवार का जो हैंडल होता है उसके ऊपर था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt. एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वॉलो पक्षी गुजर रहा था। उसके बाकी साथी जो हैं वो इजिप्ट 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने पहले ही जा चुके हैं, लेकिन वो पीछे रुक गया है। अब उसने फैसला किया है कि वो भी इजिप्ट जाएगा। This you can see is the image of a swallow bird. It's not very large, it's a small bird. And these are various images of that bird. Okay? These are different images. So it's a beautiful bird, and it is going to Egypt. On the way to Egypt, he is passing through this town in which the statue of this happy prince is located. All day long he flew. At night time he arrived at the city. मतलब वो उसके बाकी साथी जो है 6 हफ्ते पहले जा चुके हैं और वो पीछे से अब जाने का फैसला किया है इजिप्ट। तो वो सारा दिन उड़ा है और रात में वो उस शहर में पहुंचा। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. ये यहाँ पर थोड़ा sarcastic, थोड़ा मजाकिया अंदाज में कुछ सोच रहा है और कहता है मुझे कहाँ ठहरना चाहिए। आशा है शहर वालों ने मेरे लिए इंतजाम किए होंगे। Then he saw the statue on the tall column. I'll put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो उसने उस हैप्पी प्रिंस का ऊंचा सा कॉलम पर स्टैचू देखा और वो चीखा। यह क्राइड का मतलब होता है वो चीखा, चिल्लाया, खुश होकर बोला। कहता है मैं वहीं पर रुकूंगा, वो एक अच्छी जगह है जहां पर खूब सारी ताजी हवा मिलेगी। वो खुश होकर वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में, दिस इज द पोजीशन वेयर ही लैंडेड और वेयर ही गेट डाउन द बर्ड, द स्वॉलो बर्ड। तो ये बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. तो वो अपने आप को कहता है कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। गोल्डन बेडरूम उसने इसलिए कहा क्योंकि because the statue was covered with leaves of gold and the swallow bird was there at the feet of that golden statue. That's why he says that I have a golden bedroom. And next he prepared to go to sleep. और वो सोने की तैयारी करने लगा। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वो अपने पंखों के अंदर अपने सिर को छुपाने वाला था सोने के लिए, वैसे ही एक पानी का बड़ा सा बूंद उसके ऊपर गिरा। So this is the image of a swallow bird sleeping. It has tucked his head beneath his wings. उसने अपने सिर को अपने पंखों के बीच में छुपा दिया। This one. So यही काम swallow भी करने जा रहा था। But suddenly what happens? A drop of water fell on him. एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. वो अचंभित हो जाता है और सोचता है या कहता है कि क्या अजीब हो रहा है। आसमान में तो बादल एक भी नहीं है, सितारे बिल्कुल साफ हैं और चमकदार हैं, फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell, और तभी दूसरी बूंद भी गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must
मुझे एक अच्छा चिमनी पॉट खोजना चाहिए, और ये सोचकर वो उड़ने की तैयारी करने लगा। दिस यू कैन सी इज अ चिमनी पॉट। चिमनी घर के बाहर का निकला वो हिस्सा है जिसमें से घर का धुआं निकलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ढका हुआ है, ये इसलिए रहता है ताकि जब ऊपर से बारिश हो तो वो घर के अंदर ना घुसे। तो यहाँ पर एक शेड बना हुआ है, तो वो पक्षी भी फैसला करता है कि वो इसी चिमनी पॉट के नीचे जाकर बिताएगा, और ऐसा सोचकर वो उड़ने के लिए तैयार होता है। But before he had opened his wing, a third drop fell on him and he looked up and said, "Oh, what did I see?" और जैसे ही वह पंख खोलता है या पंख खोलने के लिए तैयार होता है ताकि उड़ सके, तभी उसके ऊपर एक तीसरी बूंद भी गिरती है, और तब वह ऊपर देखता है और उसके बाद कहता है, "ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ?" The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. वो जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखें पानी से भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी, और वो आंसू उसके सुनहरे गालों से होते हुए, गोल्डन चीक से होते हुए नीचे बह रहे थे। वो जो चांदनी है, चांदनी रात है, उसमें उसका चेहरा इतना खूबसूरत दिख रहा था उस हैप्पी प्रिंस का कि वो स्वॉलो जो है दया से भर गया। Who are you? he said. स्वॉलो पक्षी उस स्टैचू से पूछता है, तुम कौन हो? और जवाब आता है, I'm the happy prince. Why do you feel then? Ask the sailor, you have quite drenched me. तो स्वॉलो पक्षी उससे पूछता है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे लगभग पूरा भिगा दिया है। When I was alive and I had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. तो वो कहता है, स्वॉलो पक्षी को जवाब देता है और कहता है कि जब मैं जीवित था और मेरे पास एक इंसानी दिल था, तब मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक राजमहल में रहता था जहां पर दुखों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती। माय कोर्टियर्स टोल्ड मी, मेरे जो राज्य सदस्य हैं वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे, और मैं हैप्पी था भी। मैं वैसा ही जिया एंड वैसा ही मरा, यानी मैं खुश ही जीवित रहा और खुश ही मरा भी। And now that I am dead, they have set me up here so that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but thee. तो वो अब क्या कह रहा है कि जब मैं जीवित था तब तो मैं काफी खुश रहा, क्योंकि मैं महल में रहता था और महल में दुख का प्रवेश वर्जित होता है, दुख का प्रवेश वहां नहीं हो सकता। तो इसलिए अब मेरे मरने के बाद उन लोगों ने मेरा ये स्टैचू, मेरा ये प्रतिमा शहर में इतनी ऊंचाई पर लगा दिया है, और अब मैं यहाँ से अपने शहर की सारी अग्लिनेस, बदसूरती और बदहाली देख सकता हूँ। अब चूंकि मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, लेड इज अ हैवी मेटल, ठीक है, एक भारी मेटल होता है, तो वो कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता हूँ। यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस आए हैं इस पैराग्राफ में, ध्यान दीजिएगा। माय हार्ट इज मेड ऑफ लेड एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट। जब वो जीवित था तो वो कहता है, जब मैं जीवित था तो मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था, लेकिन उस समय मैं कभी नहीं रोया क्योंकि मैंने कभी दुख देखा ही नहीं। और अब जब मैं मर चुका हूं और मेरा हार्ट जो है लेड का बन चुका है, यानी कड़ा हो चुका है, बहुत ही मजबूत है मेरा हार्ट, लेकिन स्थिति को देखते हुए, बदहाली को देखते हुए मैं केवल रो सकता हूं और कुछ भी नहीं कर सकता। What is he not solid bone? Said the swallow to himself. He was too polite
थोड़े यहाँ स्वालो फिर से sarcastic हो रहा है और वो सोचता है, अपने आप में ही सोचता है क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ, यानी उससे पहले उसने जब उस मूर्ति को देखा था तो उसको लगा था कि ये सोने का बना हुआ है, लेकिन वो तो सोने का था नहीं, वो उसके ऊपर परत चढ़ी हुई थी सोने की। तो जब उसको ये पता चला तो वो कहता है कि मेरे पास, वो अपने आप में कहता है कि क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, वो सोना नहीं है, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति था इसलिए उसने इस टिप्पणी को उसके सामने नहीं कुछ कहा। Far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn and she has a coarse red hand, all pricked by the needle, for she is a seamstress. वो उसके बाद अपनी संगीतमय आवाज में धीरे धीरे कहता है कि दूर, बहुत दूर शहर के एक सड़क के किनारे एक छोटा सा घर है, एक गरीब सा घर है, उसकी एक खिड़की खुली हुई है और मैं उसके में से देख पा रहा हूं कि एक महिला टेबल पर बैठी हुई है, उसका चेहरा पतला है, दुखी है, ठीक है, दुखी है। She has a coarse red hand. उसका हाथ बहुत खुरदुरा है और लाल है, all pricked by the needle. और उसका पूरा हाथ जो है वो prick मतलब होता है बिधा हुआ। जब किसी नुकीली चीज से इंसान को चोट लगती है तो that is called as pricking. तो उसके हाथ जो है सुई से पूरी तरह से pricked है, छेद हो रखा है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, सिलाई करने वाली, कढ़ाई करने वाली। She is embroidered flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. बॉल का मतलब होता है पार्टी यहाँ, ठीक है ना? तो वो सीमस्ट्रेस कर क्या रही है? तो क्वीन रानी की एक बहुत ही खूबसूरत सी नौकरानी है, ओके? मेड, क्वींस मेड ऑफ ऑनर, रानी की एक खूबसूरत सी है, साथी है या नौकरानी है, उसका एक सैटिन का गाउन है, ठीक है, गाउन ड्रेस होता है, तो सैटिन का गाउन है जिसके ऊपर वो फूल बना रही है। उसी के फूल बनाने के कारण ही उसके हाथों में सुइयां चुभ चुभ कर उसके हाथ खुरदुरे हो गए। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. वहीं बगल में रूम के कोने में एक बेड है और बेड के ऊपर उसका एक बेटा सोया हुआ है, लेटा हुआ है, बीमार है, उसको बुखार है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस, संतरे मांग रहा है। His mother has nothing to give him but little water, so he is crying. उसके माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल पानी है। और उसके बाद प्रिंस कहता है, swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword head? My feet are fastened to the pedestal and I cannot move. तो वो कहता है, पक्षी को कह रहा है कि swallow swallow, क्या तुम मेरा जो sword है, मेरा जो तलवार का हिल्ट है, जो हैंडल है, उसमें से क्या तुम रूबी उस महिला तक नहीं पहुंचा दोगे? क्योंकि मेरा पैर तो नीचे जो पेडेस्टल है जिस पर मूर्ति बनी हुई थी, उस पेडेस्टल में मेरे पैर फंसे हुए हैं और मैं हिल भी नहीं सकता। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे, दैट्स ऑल, थैंक यू।